magnetic field produced due to a straight wire. Dear student, this chapter is very interesting, and the topic we are going to discuss, it is difficult. If you are not taking it seriously, then it is going to be tough. So you see this diagram, and I will make it more easy for you. So let's see. So this is a diagram. Actually, we can discuss this topic by taking one plain sheet, like we can say this is a sheet of a mobile cover. So this is like plain sheet. So we will make two hole here. We will make two hole like this. One hole is here and second one is like suppose this one. So what is going to be happen? This is a circular loop. Now if I will connect it with the battery, what will happen? Current will start moving from one terminal to second terminal from the battery, but this becomes a loop. So it don't have any end. Loop don't have any end. So current is moving like this and again circulating like this. So what is happening when a current is passed through this loop? So magnetic field is produced at these corners. Let us suppose this point is A and this point is B. So when current is passed, then what will happen? Magnetic field lines are producing, and size of these magnetic field lines are increasing. Magnetic field size is increasing, means circular, these are the concentric circles, their size is increasing and it will go increasing, and at the center it becomes straight. Now you will be surprised that why it is becoming straight, because you see, if you are throwing any stone on still water, what will happen? Ripples will be formed like this, both the sides. Let us, this one is the second. So what will happen? Ripples will be formed like this, and at last what will happen? See, at last what will happen? Size of these ripples go on increasing. They also put pressure on each other. These are water layer. They will exert pressure on each layer, and size of these, you can say, concentric circles will go on increasing, and ultimately we can say that at the center of the loop, at the center of the magnetic field lines are straight. This is very important question. Those who are studying these this topic, they are knowing this time that what I am going to discuss. So students, size of these concentric circles go on increasing, and at the center it become straight. So this can be discussed with applying Maxwell right hand thumb rule. You see, from this point I can discuss here, at this particular point current is moving in this direction. If current is moving in this direction, then you hold your right hand. This is right hand thumb rule. You hold your hand like this. Thumb indicates the direction of current. It is showing the direction of current, and we can say these circulating field showing the magnetic field. Circulating, these are the concentric circles, these are showing magnetic fields. So see the direction of magnetic field lines. Magnetic field lines are moving anti-clockwise. You can see here, these are anti-clockwise. जैसे घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, तो आप देख सकते हैं घड़ी की जो सुई है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है क्लॉकवाइज, इसलिए इसको मैंने बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज, मींस उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो जब थंब आपका ऊपर की साइड, मींस जब वायर स्ट्रेट होगी, ऊपर की साइड वायर ऐसी होगी, तब क्या होगा? Thumb indicates the direction of current, and curling of the fingers showing the magnetic field lines, and they are in anti-clockwise direction. तो सर्कल्स बढ़ते चलेंगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये स्ट्रेट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
दूसरी बात देखिए, अब जो है सर्कल ऐसे करके आइए नीचे की तरफ, मीन्स अब ये लूप है यहाँ पे, तो क्या होगा, करंट अब ऐसे जा रहा है। अब आप बोलेंगे जब करंट स्ट्रेट जा रहा है तो ये ऐसे कैसे हो गया। आप देखिए इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स देखिए, वायर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है। अब ऐसे अगर मैं रख दूँ तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये स्ट्रेट है, उसके बाद आगे चलेंगे तो भी स्ट्रेट है, तो वायर इज स्ट्रेट, current is moving like this. So what will happen when current is moving in this direction? Then we will hold our right hand in and thumb showing the direction of current, and curling of the finger showing the direction of magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चलेंगी और उसका साइज इंक्रीज करता चलेगा और लास्ट में जाके स्ट्रेट हो जाएगा। आप दूसरा देखिए इधर, इस अब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब करंट इज मूविंग लाइक दिस, सो आई एम शोइंग हियर। सो करंट की डायरेक्शन ही देखिए आप, करंट की डायरेक्शन अब डाउन साइड, फ्रॉम अप साइड टू डाउन साइड, पहले डाउन टू अप, अब इस तरफ से डायरेक्शन आ रही है इसकी करंट की। तो यू विल होल्ड योर राइट हैंड लाइक दिस अगेन, thumb showing the direction of current and curling of the fingers showing the direction of magnetic field lines. Again see, these are the magnetic field lines. ये देखिए आप डायरेक्शन दे सकते हैं। अब ये क्लॉकवाइज है, अब जो आपके यहाँ पे डायरेक्शन दिखेगी आपको, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Now the direction is clockwise direction. So this experiment is shown by right hand thumb rule. We are applying here right hand thumb rule. ठीक है, तो फिर से देखिए आप कि जब आप करंट की को प्रेस करते हैं तो करंट मूव करेगा यहाँ से, और यहाँ पे वेरिएबल रियोस्टेट भी हमारे पास लगा हुआ। तो जब इससे हम वेरी करेंगे करंट को, मींस रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट वेरी करेगा। तो क्या होगा कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट, तो थंब को ऐसे रख देंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। फिर करंट ऐसे गया, स्ट्रेट से ऐसे चला गया, क्योंकि दिस वायर इज वी कैन से इंसर्टेड थ्रू दिस एनी वाइट शीट ऑफ पेपर और वी कैन से एनी कार्डबोर्ड, और वो इस तरीके का सर्कल बना हुआ है और इस बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो करंट जब नीचे की तरफ आएगा तो आपका थंब ऐसे आएगा, यू होल्ड योर थंब लाइक दिस, यू होल्ड योर थंब लाइक दिस। देखो बच्चों ये जल्दी से समझ नहीं आएगा, आप कोशिश करो कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रख दो और अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करिए, जैसे आप इसको पकड़ लो, ऐसे अपने पेन को पकड़ लीजिए, तो अपने सी द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। सो फिंगर्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए आप, तो ये आपके पास मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जब करंट आप टॉप टू बॉटम जा रहा है तो आपका क्लॉकवाइज होगा, जब डाउन टू टॉप होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ से रियोस्टेट से मैं रेजिस्टेंस को वेरी करूँगा। तो जब रेजिस्टेंस वेरी करूँगा तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ये अब देखिए यहाँ पे वी विल डिस्कस इट फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। आप ध्यान से देखना कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस को मैंने कम किया यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक, सपोज करिए, या C पॉइंट टू D पॉइंट, किसी भी एक टर्मिनल से दूसरे में, तो रेजिस्टेंस को कम किया तो करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, करंट इंक्रीज कर जाएगा। जब करंट इंक्रीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास, इट विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे क्राउडेड फील्ड लाइंस आपको दिखेंगी। अगर हम यहाँ पे आयरन चिप्स स्प्रिंकल करेंगे, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस टॉपिक, तो क्या होगा, वहाँ पे सर्कल्स बनेंगे बहुत क्लोज, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये लिखा है मैंने कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई सर्कुलर लूप कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। एक ये हो गया, बाई इंक्रीजिंग द करंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू द लूप, कि करंट को इंक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी। तो पहला पॉइंट आपका ये था कि बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, की नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप को हम यहाँ मान लीजिए हम एक और लूप
यूज कर लेंगे, तीसरा लूप एक और यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी वायर्स रख देंगे। अब सब वायर में क्या होगा, सब वायर में करंट चलेगा। जब सब वायर में करंट चलेगा तो अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। वो जब अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट देखिए आप, बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द लूप। अब मैंने पहले लूप, इतना बड़ा लूप लिया था ये, अब मैं लूप को डिक्रीज करूंगा। अब देखिए लूप इतना बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहां से स्टार्ट होंगी, लेकिन जब मैं लूप को छोटा कर दूंगा बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द लूप। अब देखिए ये फॉर्मूला था, हमने कल पढ़ा था ये, बी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट by increasing the current flowing through the loop. Magnetic field is inversely proportional to the normal distance from the loop. Normal distance from the loop means कि यहाँ से दूरी पे अगर लूप आपका, इसका लूप छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। So we can discuss here on decreasing the radius of the loop. Okay, the third point on decreasing the radius of the loop, as magnetic field strength formula is inversely proportional to the radius of the loop, becomes the double of the magnetic field strength. Means when this radius is decreased, magnetic field strength will become double. So you can see here when we have taken the third point, that where magnetic field strength is inversely proportional to radius of the loop, then we have decreased this radius to this small radius, small circle. Then we can say when the current loop is doubled, means अगर इस लूप को मैंने करंट लूप को डबल कर दिया, मीन्स ये जो बहुत बड़ी वायर है एक, उसको मैंने इसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया, लेकिन वो डबल हो गई ऑटोमेटिकली। सो क्या होगा, when the loop current is doubled as magnetic strength formula is directly proportional to the loop. तो क्या होगा फॉर्मूला, कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है that is directly proportional to the current. तो करंट अब इस वायर में भी जा रहा है, इस वायर में भी जा रहा है। पहले एक ही वायर में करंट मूव कर रहा था, अब दो वायर में करंट मूव कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हेंस वी कैन से कि ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। नाउ इफ वी विल डिस्कस दिस क्लॉक रूल, वी कैन से क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल, इस रूल को देखें आप तो यू कैन सी here current is anti-clockwise direction. Current is anti-clockwise direction. So you can see this diagram. अगर करंट आपके पास anti-clockwise direction में और करंट जो thumb है that is the direction of current, thumb gives the direction of current, then this we have to write N, means from north pole you can identify this we can say circle that it will form a north pole. अब देखिए आप, अगर आप करंट ऐसे जा रहा है और आपकी कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स इज लाइक दिस, देन एक्सटेंडेड थंब गिव यू द नॉर्थ पोल और दूसरी साइड का साउथ पोल बनेगा। और अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है टॉप टू बॉटम, देन यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब आपके पास जो आपको याद रखना है दैट इज साउथ पोल। ये देख सकते हैं आप, जो एक्सटेंडेड थंब है आपके पास, ये करंट की डायरेक्शन है, और जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स हैं दैट आर क्लॉकवाइज। देन यू कैन सी साउथ पोल विल बी फॉर्म्ड, साउथ पोल विल बी फॉर्म्ड। तो आप इसमें क्लॉक फेस रूल में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल कहां बनेगा और साउथ पोल कहां पे बनेगा।